सेकंड रो माइक दे दो। ये केवल 15 मिनट का रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन। यदि आपको चांस नहीं मिला क्वेश्चन रेज करने का तो आप प्लीज वो क्यूआर कोड के साथ या चिट्ठी में हमें दे दीजिए, तो हम उसको देख लेंगे। अपना हॉस्पिटल का नाम और अपना नाम, मोबाइल नंबर दे देना, है ना। Good morning, CEO sir and other morning deputies. There is a very common problem what all hospital directors are facing. What in my purview, see there is a 15 days deadline from the surgical package to shift to the medical package. Suppose we book a patient for a simple rotator fracture or some other fracture, being either an orthopedic surgeon, and the patient gets some sort of pneumonia or other inevitable post-operative complication. कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी की शुगर बढ़ गई या कुछ हो गया। ऐसी कंडीशन में उसको मेडिसिन में तो कैसे लेंगे? 15 दिन का गैप जो है उसके लिए बड़ी दिक्कत जाती है पेपर में। ठीक, तो ये नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। बट विद इन स्कीम्स फ्रेमवर्क 3 days pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization will cover all the surgical package. ये लिखा हुआ है। The framework is like that. यस सर। बट उसमें कुछ अगर मॉडिफाइड होता है और ग्रेड, तभी हम आपको पे कर पाएंगे। दूसरा, देयर इज सर्टन फॉलो पैकेजेस, लाइक कोई स्टोमा ओपन है और उसको आप क्लोज करते हैं आफ्टर 1 month 2 months, तो उसका पैकेज है, फॉलो पैकेज किया जाता है। बट फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर आपने रिपेयर किया और उसके बाद 15 दिन में उसको निमोनिया होता है, तो देयर इज नो सच पैकेज। सो दिस इज सम चैलेंजिंग थिंग, but as of now there is no package. A very common thing which I want to say, clavicle fracture है, 17,500 का पैकेज है, एनेस्थेटिस्ट ने ब्लॉक लगाया है, कुछ बोल दिया, न्यूमोथोरेक्स हो गया सपोज, बहुत कम चांसेस है 1 to 2%। अब उस न्यूमोथोरेक्स के लिए पेशेंट को 5 दिन आईसीयू में रखना पड़ जाए, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। I understand there are certain instances की complication हो जाना, but because this is a scheme में यदि फॉर एग्जांपल उल्टा सोचो, मैंने उसमें प्रोविजंस रख दिया कि एनी कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग फ्रॉम द सर्जरी इज टू बी पेड। क्या होगा उसका? प्रत्येक पेशेंट सर्जरी का जो है कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। आज जिसका रेट जो रेट आपका 1% है कॉम्प्लिकेशन का, वो रेट आपका 50% से नीचे नहीं आएगा। दिस इज अब्यूज ऑफ स्कीम, बिकॉज ऑफ स्कीम। इसलिए मैं इसका ये जवाब नहीं दूंगा कि मैं इसको कर पाऊंगा। But your question is well taken. सर्जरी का पैकेज बढ़ जाएगा, अगर सर्जरी का पैकेज बढ़ जाएगा 17,500 को क्लिनिकल में, ऐसे कुछ बहुत सारे ठीक है। This is a challenging thing. We'll discuss it with the NHA. Thank you sir. Your question. Next. Sir, good morning. First, I congratulate you for having this particular presentation, because most of the problems of the hospitals will be solved. I am also orthopedic surgeon, so I am not going into those details. There are only 2 small suggestions. One is this: the query and the payments done to registered mobile number है, उस पे SMS आ जाए, not a big deal. Then rather than opening the email, that can be checked easily. Okay, your suggestion will be taken. Thank you. So query अगर raise करती है तो it has to be communicated with message, and someone should note it down. And secondly, sir, if this particular total video is made available either on YouTube or the government Yes, website. sure. That will also will take care of it. है ना? एक वीडियो बनाना है TMS 2.0 का और इनको देना है, ताकि कैसे CSV फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे इसको रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ICT will take care of it. Very good suggestion. We'll take one question from you. Sir, rejection should also be made on phone with SMS. Okay. Thank you. Good afternoon, sir. I'm Dr. Mishra. I really want to thank you for arranging this very informative session. I have a query that the MOU which we had signed very clearly shows that the TATO file submission is discharge summary and bills is 2 weeks, around 15 days. And today there was a slide which said that the TAT is now 7 days. Sometimes usually we upload the files within 72 hours, usually. But sometimes when the number of cases goes too high, then we actually end up and submitting them around 8 to 10 days. Meaning that it was 2 weeks. So just wanted a bit of a clarification on that. Rishi है यहाँ पे? Rishi is here. As of now, the clarity is like we should
upload the cases within 7 days. It's as per the NHA guidelines. But if there is anything in our MU, I will look into it. So kind of you, sir. Thank you. सर नमस्कार सर, मेरा क्वेरी जो है टेट वायलेशन का जो वो है, But for your kind information, it is only up to 5 to 7%. So most of your transactions has been approved up to like 93% has been approved. So it's a portion of 7%. But again, we have made it through portal. It will be very easy to you. Also, I will look into these 15 days guidelines and then we will communicate it to you accordingly. सर नमस्कार सर इसमें क्या होता है सर? सर मैं ये पूछना चाहता था, जो टेट वायलेशन बोलकर जो केस क्लेम रिजेक्टेड हो गए उन्हें फिर से रीसबमिट कैसे किया जाएगा, मतलब क्या रिमार्क डालेंगे हम, क्या करेंगे? अभी जो आपको बता दिया ये TMS 2.0 के केसेस जो रिजेक्ट हुए होंगे आप थ्रू पोर्टल कर लीजिए। TMS 1 के जो केसेस है उसके लिए हम लोग NHA के साथ बात कर रहे हैं। जैसे वो फैसिलिटी आ जाएगी तो हम आपको जो है वो बकेट दे देंगे और फिर यू कैन सबमिट इट ऑन पोर्टल। बेसिकली मेरे पास पहले ऑफलाइन था, वो सिस्टम को मैंने बंद किया। सर क्लेम सबमिशन का टाइम पीरियड और बढ़ा सकते हैं क्या सर? जब ज्यादा केसेस होते हैं तो वो विद इन ए पीरियड नहीं कर पा रहे सर, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, एडमिशन डिस्चार्ज और फिर जब रिपोर्ट अवेटेड है, ये सजेशन है, कोई नोट डाउन कर लीजिए। इसका टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए सर। सबमिशन ऑफ रिजेक्टेड केसेस का टाइम जो फ्रेम है उसको बढ़ाना है। थैंक यू विल टेक नोट ऑफ इट। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान का वक्तव्य का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये से मतलब मेरे हॉस्पिटल में यूपी का पेशेंट आया, तो अभी यूपी के पेशेंट में क्या समग्र आईडी वेरीफाई करते हैं, यूपी में क्या समग्र आईडी चलती है, तो हम कैसे पता करेंगे कि आयुष्मान कहीं ऐसा तो नहीं नकली बनवाया या फर्जी बनवाया? यूपी के पेशेंट को पोर्टेबिलिटी फीचर ऐसे रेज करेंगे, वो यूपी के एसएचओ हो जाएगा, उनके टीपीए हो जाएगा। उनका टीपीए वेरीफाई करता है कि ये जो आयुष्मान कार्ड है वो उनके स्टेट में एलिजिबल है कि नहीं। अगर उन्होंने प्री ऑथराइजेशन अगर ओके कर दिया तो आप ट्रीटमेंट दे दीजिए, वो पेमेंट यूपी वाले आपको करेंगे। सो डोंट वरी, ये बर्डन उनका है, स्टेट का है टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी एंड आल्सो पे टू यू। लाइक मध्य प्रदेश के जितने भी केसेस गुजरात और महाराष्ट्र में जाते हैं वो हमारे बेनिफिशियरी तो मैं पे करता हूँ और यूपी ऑथराइजेशन भी हम लोग उसका समग्र आईडी चेक करते हैं। सो डोंट वरी, यदि आपको प्री ऑथराइजेशन मिल जाता है तो आप प्लीज कर लीजिए उसको। क्लेम नहीं किया। हाँ, दूसरी बात, क्या फर्जी आयुष्मान कार्ड बनते हैं क्या? देखो ये जो सवाल है, there is always there is a possibility of misusing the present guidelines or present system. So कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब जो मोडस ऑपरेंडी हमने ओवर द पीरियड चेक की है, आयुष्मान कार्यालय की जिम्मेदारी जितने भी लोग आयुष्मान के हितग्राही बन जाते हैं पहले उसको ट्रीटमेंट देना है और उनको पे करना है। ठीक है, आपको ट्रीटमेंट देना है, आपको पे करना है, ये हमारा दायित्व है। बट कौन व्यक्ति आयुष्मान में बेनिफिशियरी होगा, इसके क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बनाए वो क्लियर करते हैं कि 70+ है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एनी कैटेगरी वो 100% इंक्लूड होगा। आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका वो और उनके फैमिली मेंबर्स 100% कवर हो गए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि जो केसेस जो सेक मतलब सोशियो इकोनॉमिक क्लास सेंसस में जिनका नाम था 2011 में, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के बकेट में। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी कुछ क्राइटेरियाज बनाए, जैसे संबल के हितग्राही, धर्मकार मंडल के हितग्राही, भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स के हितग्राही और जिनको भी राशन मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो भी लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ने डाला है। अब क्या चीज है कि एसएचए क्या करता है, हम लोग जो भी डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट है उनको हम कहते हैं कि वो हितग्राही है कि नहीं, ये आपका हेडेक है। संबल योजना जो चलाते हैं श्रम विभाग, हम उनको पूछते हैं ये आपका हेडेक है, कौन सा हितग्राही है। हमने उनको एपीआई दी है, जैसे वो हितग्राही बन जाता है उस स्कीम का, वो ऑटोमेटिकली आयुष्मान का हितग्राही बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि ग्राम लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे किसी ने संबल कार्ड बना लिया फर्जी अपना ये दिखा के समग्र आईडी चेंज करके, तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिशियरी बन जाएगा। बट ये मतलब हमारी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं
उनको देखना चाहिए कि क्या उनकी स्कीम में कोई फर्जी हितग्राही तो नहीं आ रहे। फर्जी मीन्स कि कोई व्यक्ति ने अपना इनकम कम दिखा दिया या पात्रता पर्ची फर्जी तरीके से पात्र कर ली, फिर वो ऑटोमेटिकली मिली। तो हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है, हम लोग कुछ आइडेंटिफाई करते उसको ब्लॉक कर देते हैं कार्ड। तो सर हम कैसे पहचाने ये फर्जी है? तो आपको तो ये काम नहीं करना है फर्जी। आपको अगर यदि आयुष्मान कार्ड है और हमें प्री ऑथराइजेशन हो गया है तो आपको ट्रीटमेंट लेना आपको भी होगा। सर मैं जान लेता हूँ, ऐसा तो मैंने लास्ट 6-7 मंथ में कोई केस का नहीं किया है कि वो फर्जी क्लास समझ के आपको पे नहीं किया है। मैं सर जान रहता हूँ ना, वहाँ पर तो एक व्यक्ति बोलता है उसके पास राशन कार्ड किसी के पास नहीं है, तो वो बोलता ना 5,000 देता है। नहीं देखो, 5 बोलने वाले देखो, ये आयुष्मान सवाल इसलिए है, जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तब एजेंट्स लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ये इसका अगर कोई मुझे एक वर्ड में बोलेगा कि इसका क्या सबसे बड़ा पर्पज है, वो पर्पज यही है, टू डिक्रीज द असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। हम डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने आपको बता भी दिया कि पोर्टल कैसे चलता है, ताकि आप लोग किसी से कांटेक्ट करके वो पैसे आपसे लेके वो काम मत करवा लीजिए। ये मेरा फॉरमोस्ट उद्देश्य है। सिमिलरली आयुष्मान कार्ड 5,000 में बनाता भी नहीं होगा, फिर भी वो पैसा लेना चाह रहा होगा, बिकॉज उसको इन्फॉर्मेशन नहीं आयुष्मान कार्ड कैसे बनते हैं और कौन हितग्राही पात्र होते हैं। सो दैट इज द आंसर। आई होप कि मैंने पार्शियली आपको वही किया होगा, बट बहुत सारी क्वेरीज है। दिस लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम चाय ब्रेक के लिए रुकेंगे। सर कोई अभी किसी ने बताया मुझे कि उसको हम लोग कैट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये रिजेक्टेड केस अभी एक्चुअली ये फीचर अभी आया है, रिसेंटली आया है, तो उसके बारे में हम आपको ड्यू कोर्स में कम्युनिकेट करेंगे कैट के बारे में। हमने तो आपको जस्ट फीचर बता दिया है कि अभी आप पोर्टल के माध्यम से करेंगे। इनिशियली हम लोग इसको रिलैक्स करेंगे Because few cases were taken up by the portal, but few cases portal did take. नहीं, हम लोग आपको वो दे देंगे, आपको टाइम दे देंगे। Thank you, sir. सर गुड आफ्टरनून सर सर। लास्ट क्वेश्चन Sir. किस तरफ से कर ले लेते हैं हम? एक तरफ। सर आई एम डॉक्टर ठाकुर फ्रॉम ट्रिनिटी हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि ये सेशन के बाद हमने इसलिए रखा है क्योंकि पर्टिकुलरली सेशन के बारे में कुछ आ जाए, अदरवाइज लास्ट में हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं सब लेक्चर्स में। Sir, my doubt is regarding this package of tracheostomy. Sir, अभी recently what we have seen is कि ये कुछ ही medicine code के साथ add on होता है. But as an expert we know कि any patient who is on ICU with ventilator and require prolonged ventilator support will need tracheostomy. Recently, sir, we had one case of CCF who went on ventilator then tracheostomy was done. तो फिर उसके अप्रूवल के लिए जब हमने अप्लाई किया सर, तो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था। आपके सेंटर से हमने कम्युनिकेट किया तो उन्होंने कहा कि आप जब CCF से डिस्चार्ज कर देंगे तब आप उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डाइड ड्यूरिंग दिस कोई नहीं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये नोट करो। कोई ट्रैकियोस्टॉमी पे जाता है, इट हैज टू बी गिवन अप्रूवल ऑन दैट टाइम। ठीक है, थैंक यू। हम उसको दे देंगे। सो हम लोग इसके लिए रुकेंगे अभी चाय ब्रेक के लिए, बट अभी जितना भी हमारा क्लेम मैनेजमेंट हुआ उसका मैसेज यही है कि क्लेम मैनेजमेंट इज ऑन पोर्टल, इट्स ए ट्रांसपेरेंट, विदाउट फीफो हम लोग बिल्कुल इंटरव्यू नहीं करते। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र हो या यूपी, उत्तराखंड फॉर दैट मैटर, हरियाणा, बाकी किसी भी स्टेट में आप पूछ लीजिए, the payment is pending since 4 to 5 months. Some states it's 6-7 months. I am proudly saying that last payment I have paid is 16th of August. मेरे बंदे भी जो अभी जो पेमेंट आया है, जो आपको दिखाई जो केसेस प्रोसेस होके आए हैं, हो सकता है 80% केसेस होंगे, कई इधर उधर होंगे। लास्ट डे जो है 10th अगस्त की है और आज है 22 सितंबर, तो ऑलमोस्ट 1 month and 10 days का गैप है। उसको भी मैं कम करके 1 मंथ में आपके क्लेम भी प्रोसेस होंगे और क्लेम पे हो जाएंगे। ऐसे प्रोसेस हम कर रहे हैं। थैंक यू। सर जस्ट वन क्वेश्चन फिर से मिल लेंगे अभी हम टी ब्रेक के लिए। सर ने जैसा